All right, topic sequences and patterns. So now you can see that in this topic, we have four major sequences and we'll study them one by one. First one is arithmetic sequence, arithmetic sequence. The second one is geometric sequence. The third one is quadratic sequence, quadratic sequences. ठीक है. And the fourth one is cubic sequences, cubic sequences. Okay. These are four major sequences. Okay. These are four major sequences of this topic. Okay. Now you can see that this topic is both included in both the syllabuses, GC, IGCC, दोनों में. In GC, it can come in paper 2, and in IGCSE, it can come in paper 4. 12 to 15 marks, but still you can get a question in other papers as well. Okay, छोटे छोटे questions जो हैं पेपर 1 और पेपर 2 में भी आ सकते हैं GC और IGCSE के respectively. Okay, few sequence to memorize. अब ये memorize करने हैं आपने. memorize करने का फायदा ये होगा कि आपको ये याद हो जाएंगे. ठीक है. Like first sequence is, जैसे I know that 0, sorry, 1, 4, 9, 16. I know that the next number is 25 because it's a square sequence. ठीक है, it's a square sequence because this is 1 square, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square, this is 5 square. We know that the next number is 6 square, which is 36. So it means that the formula is n square. कि इसका फॉर्मूला जो है बेटा वो n square इसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर सीक्वेंसेस का. नाउ इन स्क्वायर सीक्वेंसेस, अब यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. अच्छा, स्क्वायर सीक्वेंस, स्क्वायर सीक्वेंस. ओके. अब स्क्वायर सीक्वेंस कभी इट विल गो एज अ फॉरवर्ड शिफ्ट और कभी बैकवर्ड शिफ्ट. फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड शिफ्ट आती है तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ फॉरवर्ड शिफ्ट, व्हाट इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट? That sequencing, the sequence is missing one of the number. For example, the sequence is starting from 4, 9, 16, 25, 36. Noor, still the next number would be 49. Agree? Yes, sir. But the formula would be n plus 1 whole square because 1 is missing. Agree? For example, the sequence is starting from 25. Then it is 36, then it is 49, then it is 64, then it is 81, 9 square and 10 square is 100. I know that the sequence is still a square sequence, but what is missing? आपके पास क्या चीज इसमें missing है आप बता सकते हैं? आपके पास 1 missing है, आपके पास 4 missing है, आपके पास 9 missing है, आपके पास 16 missing है. तो ये missing है इसमें, right? So the sequence would be, there are how many numbers are missing in this one? Can you please tell anyone? 1, 2, 3, 4. So the formula would be n plus 4 whole square. This is what a forward shift is. Is this clear, everybody? Okay. What if the sequence is backward shift? Backward shift may we have only one case, okay? Backward shift. The sequence is starting, it is still a square sequence, but the problem is that the sequence is starting from 0, 1, 4, 9, 16, 25. So the formula for this sequence would be n minus 1 whole square. बेटा समझ आई है? मारो. कबीर, अयाना. Yes, sir. गुड जॉब. अब याद रखें, अभी अगर मुझसे भी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने पूछा, बेटा आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई कहे कि -4 या +4, इन दोनों में से स्क्वायर नंबर कौन सा है, -4 या +4? +4 इज अ स्क्वायर नंबर बट -4 इज इट इज एन इंटीजर. ओके, ये इंटीजर है तो ये स्क्वायर नंबर आपके पास, स्क्वायर नंबर. ठीक है, ये याद रखें, ये हिंट के तौर पे मैंने आपको बताया है.
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अच्छा, फिर इसी तरीके से सेम आपके पास आ जाता है क्यूबिक, क्यूब्स आ जाते हैं आपके पास। क्यूब्स में आपको पता है कि 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब इज़ 216। अब आपको पता है कि दैट दिस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 cube, and this is 6 cube. So the formula is n cube. Okay. For example, Kabir, can you please tell me, अगर सीक्वेंस 8 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्टिल सीक्वेंस जो है वो बिहेव क्यूब्स की तरह कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कबीर? टर्न ऑन योर माइक प्लीज। हेलो सर, जी आवाज बेटा। आ रही है? जी बिल्कुल। n+1 होल क्यूब। वेरी गुड, n+1 होल क्यूब। ओके, नूर आपकी बारी। अगर सीक्वेंस जो है वो 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n+1 4, नो, n प्लस व्हाट? n+1 bracket नो, close and goal. नो, n+2। 1 और 8 दोनों में से है, 27 से स्टार्ट हुआ है, देखें। समझ आइए नूर? जी सर। ओके अयाना, अगर सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो जाए लेकिन स्टिल आगे के सारे नंबर क्यूब्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये n बैकवर्ड शिफ्ट minus है। 1 whole cube. वेरी गुड, इट इज n-1 होल क्यूब। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ एक सीक्वेंस में लेता हूँ, इन तीनों में से मैं ये सेकंड वाला ले लेता हूँ। 27, 64, 125, 216। मुझे नूर ने कहा कि सर फॉर्मूला जो है वो n+2 होल क्यूब होगा। लेट्स पुट n इज इक्वल टू 2, देखते हैं 64 आता है कि नहीं। सो n की जगह पे 2 डालेंगे हम लोग, तो हम आ जाएगा 2+2 होल क्यूब। सो इट इज 4 क्यूब एंड 4 क्यूब इज 64। चेक्ड, यस और नो? समझ आइए बेटा। जी सर। गुड जॉब। ओके, नाउ प्रोसीडिंग विद द ट्राइंगल नंबर्स। अब ट्राइंगल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? किसी को आइडिया है व्हाट आर ट्राइंगल नंबर्स? Those numbers which can make a triangle, like for example I can make a triangle with 1 dot, I can make a triangle with 3 dots, I can make a triangle with 1, 2, 3, 4, 5, 6 dots, I can make a triangle with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एग्री? देखिए जितने मैं नंबर बना रहा हूँ एक एक रो में एक एक मैं डॉट को ऐड किए जा रहा हूँ, ठीक है। सो हो रहा क्या है कि सब नंबर्स मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्राइंगल नंबर, जिसमें 1 आता है, देन वी हैव 3, देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, देन वी हैव 10। अच्छा, इसके बाद होगा 15। अच्छा, इन नंबर्स का भी एक अपना सीक्वेंस होता है और उसका फॉर्मूला है एन टर्म में, अगर इसकी हम फाइंड आउट करते हैं। सो द फॉर्मूला इज 1/2n ब्रैकेट n+1। ये आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना, ठीक है। आगे जाके मैं इसको डिराइव करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस में। अब एक बात मुझे बताएं आयाना, कैन यू हियर मी? Yes sir. आई वांट टू चेक अ ट्राइंगल नंबर, आई वांट टू पुट n इज इक्वल टू 3। मैं n की जगह पे 3 डालूंगा, आई वांट टू सी कि वेदर आंसर 6 आता है कि नहीं। चेक, कैन आई? सो 1/2 Yes sir. इंटू थ्री n की जगह पे हम 3 डालेंगे क्योंकि थर्ड टर्म इज 6, ब्रैकेट 3+1। Okay, 1 threes are 3. Okay, 3 plus 1 is 4. Divide by 2. So 3 fours are 12. 12 divided by 2 is 6. क्या बेटा 6 आ गया आपके पास? जी सर। तो इसका मतलब है कि बेटा आपका सीक्वेंस जो है ना बिल्कुल ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अयाना, कबीर, मारूफ, नूर, हाइका स्टिल मिसिंग, इबाद इज मिसिंग, एहसन इज मिसिंग। जी बेटा, क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ऑलराइट, देन प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ द सीक्वेंस। ये फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ द सीक्वेंस है।
विच इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो पहले मैंने जितने भी कराए हैं ये आपने सारे याद करने हैं। अच्छा, लिखना है, कॉपी पे नोट्स बनाएं और इसको याद करें। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, ओके। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर दोज सीक्वेंसेस, दोज सीक्वेंसेस, दोज, बेटा जहाँ पे समझना है बोल दिया करें, मैं रिपीट करूंगा। दोज सीक्वेंसेस, दोज सीक्वेंसेस in which we get the next number by adding slash subtracting a particular number। एक खास नंबर को ऐड या माइनस करके we will get the next number। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि नोट्स में अच्छा लग जाए। ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। वेयर ए एन इज द एन टर्म, ए एन इज द एन टर्म, ठीक है। ए वन इज फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और डी बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस को। सो डी इज फाइंड बाय नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस प्रीवियस टर्म, ठीक है जी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूँ। एक बार मुझे बताएं, 3, 5, 7, 9, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म? एनीवन, कोई भी बता सकता है। 11। 11, ये ओके, यस 11, ओके। अगर एग्जामिनर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज रूल, तो बेटा रूल इज ऐड टू, ये इंग्लिश में लिखते होते हैं, ऐड टू, ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया। अगर एग्जामिनर कहता है बेटा एन टर्म बताओ, तो एन टर्म के लिए पहले पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कौन सा है। तो सीक्वेंस अरिथमेटिक है क्योंकि +2 हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले फॉर्मूले में डी फाइंड करना ज़रूरी है। डी आता है बेटा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से। आयाना, आई से दैट दिस 9 इज माई नेक्स्ट टर्म एंड दिस इज माई प्रीवियस टर्म, एग्री? yes sir, ओके, तो मैं डी फाइंड आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज 9 माइनस 7, सो डी इज 2। तो आपने रूल में भी बताया था कि इट इज एट 2 मतलब +2। सो हमें मिल गया। ओके, अब फॉर्मूले में डालने की बारी है। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूला याद करना जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट गलत हो जाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए वन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3, आपको नजर आ रहा है। ए वन इज 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू बेटा 2 आई है। अच्छा, ये 2 जो है इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द ब्रैकेट, सो इट विल बिकम 3 प्लस 2n-2। अरेंज करें क्वेश्चन को, थोड़ी सी अरिथमेटिक इस्तेमाल हो रहा है। 2n प्लस 3 - 2, ए एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1। ओके अयाना, यू कैन सी दैट हमारे पास वैल्यू आई है, फॉर्मूला आ गया है इस सीक्वेंस का 2n+1। सो हम लोग ज़रा चेक कर लेंगे कि हमने ठीक किया है कि नहीं। और चेक करने के लिए n इज इक्वल टू 1 इज़ द बेटर ऑप्शन। n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो a1 जो है हमारे पास, 2 1s are 2 प्लस 1, तो 3 आ रहा है हमारे पास। क्या अयाना हमारे पास a1 की वैल्यू 3 थी? जी अब आप इसमें 2 डाल के देख लो, देखो 2 2s are 4, 4 प्लस 1 5 आ रहा है। नूर, yes sir, बेटा 3 डाल के देख रहा हूँ, 2 3s are 6, 6 प्लस 1 7 आ रहा है। जी सर, गुड। अब इसी तरीके से माइनस भी हो सकता है। अच्छा, सीक्वेंस कभी कभी माइनस भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा 9 -4 is 5, -4 is 1, 1 -4 is -3, -3 -4 is -7। अब देखें, दिस सीक्वेंस कैन कंफ्यूज यू, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। यस और नो? यस और नो? बिकॉज इसमें yes पॉजिटिव sir, से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो बट वी कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स कि यार इनका डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल के देखेंगे जरा डिफरेंस। सो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके।
सो मैं कहता हूँ दैट दिस 5 इज माई नेक्स्ट एंड दिस 9 इज माई प्रीवियस। तो 5 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4। ओके, एक दफ़ा और ज़रा कर लेंगे, ज़रा यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। मैं कहता हूँ दैट दिस इज माई नेक्स्ट एंड दिस इज माई प्रीवियस। तो d इज इक्वल्स टू -7 माइनस, ओके प्रीवियस भी -3 है तो ब्रैकेट में लिखो। d इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3। तो d इज इक्वल्स टू -4। देखें डिफरेंस आपके पास -4 आया, यस और नो आया ना? आया ना? Yes. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस? आया ना? बोलो फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू, A plus bracket n minus 1 into B. ओके a1 क्या है बेटा? 9 गुड। n-1 डिफरेंस क्या है? minus 4. वेरी गुड, इट्स -4। ये -4 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा अभी। सो 9 प्लस -4 इंटू एन इज -4n, तो ये प्लस का साइन हम हटा देंगे, -4n माइनस माइनस इज प्लस एंड 4 1 जार 4। अरेथमेटिक्स यूज हो रहा है। ए एन इज इक्वल टू 9। ओके, पहले -4n लिख देते हैं। ओके, -4n प्लस 9 प्लस 4। ओके, ए एन इज इक्वल टू -4n प्लस 13। ओके, फॉर्मूला आ चुका है कबीर। a1 चेक करते हैं, हमारे पास a1 की वैल्यू 9 आ रही है, हम लोग 1 डाल के देखेंगे कि 9 आता है कि नहीं। ठीक है कबीर? -4 इंटू 1 प्लस 13। a1 इज इक्वल टू -4 प्लस 13। a1 इज इक्वल टू -4 प्लस 13 आता है हमारे पास +9। आ रहा है कबीर के नहीं? जी सर आ रहा है। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि a70 फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो आपने n की जगह पे खाली 70 लिखना है। -4 इंटू 70 प्लस 13। तो आपने इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा बेटा -280 प्लस 13। ओके, प्लस माइनस से माइनस साइन माइनस का आएगा, 280 में से 13 निकालने तो 267 आता है। तो इसका मतलब है आयाना कि अगर मैं इस सीक्वेंस को 70 टर्म्स तक कंटिन्यू करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो -267 होगा। इज दिस क्लियर? Yes. ओके, चलें जी, ये तो मैं इसकी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, आप लोग सॉल्व करेंगे, ये बाद में कॉपी में भी लिखेंगे। सेकंड सीक्वेंस है बेटा हमारे पास, दो मैंने आज पढ़ाने हैं, दो मैं कल पढ़ा दूंगा तो खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। फिर परसों हम इस पे पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ओके, इस सीक्वेंसेस में द फॉर्मूला वी गेट वी गेट द नेक्स्ट टर्म बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग a particular number, a particular नंबर। आसान लैंग्वेज में लिखता हूँ, बुक में मुश्किल मुश्किल डेफिनेशंस होती हैं, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे नोट्स से ही टॉपिक की ग्रिप लिया करें, पहले प्रैक्टिस करा करें और फिर पास पेपर में जाया करें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज, अब आपके सामने मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई बाय आर होल पावर n-1। ठीक है जी। अब ए वन क्या था आया ना हमारे पास? व्हाट इज ए वन? ए वन इज First फर्स्ट term. टर्म, वेरी गुड। आर इज नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। वहां पे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस था, उसको डी का नाम देते थे, जबकि आर का मतलब है बेटा कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। ओके, अब जरा नोट करें बेटा प्लीज। 3। ओके, जरा एक बात मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स? 3 और 6 के दरम्यान में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है कि नहीं? यस और नो? जी सर। ओके, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, मतलब हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस दैट द नेक्स्ट नंबर इज 48। यस और नो? Yes. So it means that this sequence is not arithmetic. This sequence is a geometric sequence. So we cannot use the formula for arithmetic. We will use the formula of the geometric sequence. So here the rule is, rule आपके पास क्या है बेटा? Rule is
मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज एन टर्म, आप एन टर्म का फॉर्मूला लिखो। तो आपके पास एन टर्म का फॉर्मूला है A1 इंटू आर पावर n-1। पहले आर निकालना जरूरी है, बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आर इज इक्वल टू नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। आपने भी खुद कहा है कि 2 है, तो देखना रिजल्ट 2 आएगा। So R is equals to, for example, Ayana, I say that this 12 is my next and this is my previous. ये मेरा previous है. Is this clear? So 12 divided by 6, so the result is 2. Ayana, is this clear to you? Yes, sir. Okay, let's put in the formula. Formula में put करें, A1 की वैल्यू है बेटा 3, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आई है मेरे पास 2, पावर में लिख दूंगा n-1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। यस और नो? इज दिस क्लियर? कबीर, नाउ इट्स टाइम टू चेक। मैं n की जगह पे 4 डालता हूँ, देखता हूँ 24 आता है कि नहीं। यू वांट टू ट्राई? n इज इक्वल टू 4। चेक करते हैं कि n की जगह पे 4 डालेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके अंदर 24 आना चाहिए। सो लेट्स चेक कि ये 24 आता है कि नहीं। सो इसमें ज़रा डालते हैं, 4 डालते हैं n की जगह पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा बेटा 4-1। सो अयाना, 4-1 क्या आता है? 3 आता है बेटा कि नहीं? जी सर। ओके, 2 क्यूब क्या होता है बेटा? 8 होता है कि नहीं? यस। ओके, 8 3 जार या 3 8 जार 24 आ गया कि नहीं? यस और नो? तो ये हो गया बेटा चेक्ड। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, मारो, कैन यू हियर मी? जी सर। ओके जी, बस अभी आपने माइक अपना बंद नहीं करना। ओके जी, सब बच्चे अपना ये सीक्वेंस एक सामने लिख रहा हूँ, मुझे बताएं कि ये सीक्वेंस कौन सा है। मारो, आपका माइक ओपन रहे। सर, जी बेटा। हमने ये चैप्टर आज ही स्कूल में पढ़ा है ना, तो सर इसमें सर ने हमें एक फॉर्मूला बताया था, उसमें लाइक सारे क्वेश्चन उसी पे सॉल्व हो रहे थे। कौन सा फॉर्मूला बताया था उन्होंने? सर मैं टाइप करके आपको भेजती हूँ चैट में। पिक्चर लेके भेज दो कॉपी की, मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ। सर दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा जी, दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। बिल्कुल जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस नजर आ रहा है, +4 हो रहा है। यस और नो? तो यस। रूल इज ऐड 4, ऐड 4, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? एनीवन? 23। वेरी गुड, इट्स 23। नेक्स्ट टर्म इज 23। ओके, एन टर्म का फॉर्मूला क्या है मारो, अरिथमेटिक सीक्वेंस का? नूर फातिमा? an plus ए एन इज इक्वल्स टू? a1 plus n minus 1 bracket है और d। वेरी गुड, ओके। तो पहले डी फाइंड करते हैं। डी होता है हमारा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। सो 19 को कहते हैं कि ये हमारा हो गया नेक्स्ट, और प्रीवियस हो गया हमारा 15। हमें पता है कि 4 है, लेकिन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात नेगेटिव नंबर में नेगेटिव आंसर आ रहा होता है। तो 19 माइनस 15 इज़ 4। वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले में पुट करते हैं। A1 इज़ व्हाट? A1 इज़ 7 प्लस n-1, and the difference is what? 4. So an is equals to 7 plus 4n minus 4. So an is equals to 4n plus 7 minus 4. So an is equals to 4n plus 3. So देखिए मारो, आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आप चेक करें कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो n की जगह पे 1 डाल देंगे। A1 इज इक्वल्स टू 4 1 जार 4 प्लस 3। सो A1 बेटा आपके पास 7 आ रहा है, और क्या क्वेश्चन में 7 था मारो?
जी समझ आई है? जी सर, आ गया। बेटा देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि कैमरेज के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो स्मार्ट वर्क से आपको मिलता है। याद रखें, कैमरेज का एग्जामिनर आपके रिजल्ट्स नहीं देखता, वो आपकी मेथोडोलॉजी देखेगा। उसी मेथोडोलॉजी के ऊपर आपके नंबर होते हैं। समझ आ गई बेटा? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अयाना, कबीर, मारूख है, नूर। यस सर। चलें, अभी एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उसके ऊपर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है? तो लेट्स चेक। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में ले रहा हूँ 5 से, फिर आगे जी 7.5, फिर आगे बेटा 11.25, फिर आ गया बेटा 16.875। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं कि ये सीक्वेंस क्या आपको अरिथमेटिक लगता है? इज दिस सीक्वेंस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक? सर इट्स नॉट अर्थमेटिक। It's not arithmetic. Now the question is whether it is geometric or not. Agree? So we know that in geometric sequence we have a common ratio. Yes or no? Which will is next divided by previous. Agree? Let's take this as next and this as previous and check. 7.5 divided by 5 is what? Check in calculator, you will get the answer 1.5. For example, अयाना, मैं इसको कहता हूं कि ये मेरा हो गया बेटा नेक्स्ट और ये हो गया बेटा मेरा प्रीवियस। ठीक है अयाना? तो जब मैं नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस करूंगा तो 16.875 डिवाइड बाय 11.25, तो हमारे पास फिर आंसर आएगा 1.5। इसका मतलब है कि इनकी कॉमन रेशियो सेम है। इसका मतलब है कि ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इज दिस क्लियर? आप करके देख लो कैलकुलेटर पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 7.5, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 11.25, 11.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 16.875। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? a1 इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a1 टाइम्स r पावर n माइनस वन। मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। a1 जो है हमारे पास है 5, कॉमन रेशियो है बेटा 1.5 होल पावर n माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कबीर क्लियर है बेटा? यस सर। ओके कबीर, ये देख लें जरा। अब मैं a1 चेक करता हूँ जरा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और n की जगह पे मैं 1 डाल दूंगा तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 माइनस वन इज 0। सो 1.5 पावर 0 एंड वी नो दैट एनीथिंग विद पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। So a1 is equals to 5 multiplied by 1 and a1 is equals to 5. So yes, we got the same result क्योंकि हमारा a1 जो है वो 5 है। Yes or no? Is this clear everybody? बेटा क्या क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर। एनी प्रॉब्लम? देखिए जी, मैंने स्टार्ट लिया जब भी मैंने टॉपिक का तो मैंने कहा ये टॉपिक में सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स आते हैं। 4024 और 0580। जिन बच्चों का 4024 है बेटा, आपके पेपर 2 के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि पेपर 1 में भी एक या दो नंबर का पार्ट आ सकता है पेपर में। अच्छा, 0580 IGCSE के स्टूडेंट्स जो हैं उनका पेपर 4 के अंदर एक ये क्वेश्चन आ सकता है 12 to 15 मार्क्स का। हाँ, पेपर 2 के अंदर भी इसका 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है, वो आ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर की मर्जी है कि एग्जामिनर कोर्स के सिलेबस कंटेंट को कैसे स्प्लिट करता है। ठीक है जी, ये 4 बेसिक सीक्वेंसेस हैं, इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेमोराइजेशन के सीक्वेंसेस थे। पहला था हमारे पास स्क्वायर, कि स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस क्या होता है बेटा? वो होता है एन स्क्वायर। अगर फॉरवर्ड शिफ्ट हो तो जितने नंबर फॉरवर्ड हुए हैं उतने नंबर ऐड करके होल स्क्वायर करना। ठीक है, अगर बैकवर्ड शिफ्ट है तो बैकवर्ड शिफ्ट का खाली एक ही केस है, बिकॉज नेगेटिव स्क्वायर नंबर्स या नेगेटिव क्यूब नंबर्स नहीं होते। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये मतलब है कि n माइनस वन होल स्क्वायर है। ठीक है,
फिर क्यूब्स में चले गए, क्यूब्स की बारी आ गई। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट फर्स्ट 20 स्क्वायर्स और फर्स्ट 10 क्यूब्स जो हैं ये आप लोग मेमोराइज करो, ठीक है। फिर हमने ट्रायंगल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल नंबर्स का जो आपको फॉर्मूला है ये आपको रटा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको इसको फाइंड करने में टाइम ना लगे, ठीक है। आप ऑल दो इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। कल के लेसन में जब हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होता है। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को पहले ये सारे सीक्वेंस आते हों, अदरवाइज आप लोग स्ट्रगल करोगे वहां पर। अरिथमेटिक सीक्वेंस फिर हमने पढ़ा। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें वी गेट द नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर। किसी खास नंबर को ऐड या माइनस करने के बाद वी गेट अ नेक्स्ट नंबर। हमने पढ़ा जी A1 किसे कहते हैं, A1 फर्स्ट टर्म होती है। डी किसे कहते हैं बेटा, ये कॉमन डिफरेंस होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा 3 5 7 9 एंड 11। ओके, रूल हमने ये देख लिया, नजर आ रहा था कि ऐड 2 हो रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्म किया 9 माइनस 7 करके, तो हमें 2 ही मिला। A1 की जगह पे हमने 3 डाल दिया और डी की जगह पे 2 डाल दिया। क्वेश्चन को सॉल्व किया, AN का सीक्वेंस आया हमारे पास 2n+1। चेकिंग करने के लिए n की जगह पे 1 डाला तो हमारे पास A1 3 आया, जबकि क्वेश्चन में भी A1 जो है वो 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म 3 ही है। इज दिस क्लियर? फिर मैंने सेकंड एग्जांपल दी जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइज। उसके लिए मैंने क्या किया कि नेगेटिव में लेके चला गया, 9 में से 4 माइनस किया, 5 में से 4 माइनस किया, फिर 1 में से 4 माइनस किया, फिर -3 में से 4 माइनस किया। हमने ये देखा कि हमारी जो कॉमन डिफरेंस थी वो अब पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में जा रही थी, हालांकि सीक्वेंस अरिथमेटिक ही है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज को चेक करने के लिए हमने दो डिफरेंसेस निकाले, ताकि देख लेंगे -4 है कि नहीं, ठीक है। अयाना एंड नूर, बेटा ये -4 हर एक कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, अच्छा। जी सर। अगर मैं ये -3 -1 करूं, अगर मैं कहूँ कि बेटा -3 नेक्स्ट है और 1 प्रीवियस है, तो -3 -1 देखो फिर भी -4 आ रहा है। तो जब हमने डाला तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फिर इसकी चेकिंग की, हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई थे कि ठीक हुआ। फिर सेकंड हमने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कि जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। एक खास नंबर को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर कर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो मिलता है, ठीक है। तो हमें ये इसका फॉर्मूला हमने याद करना है कि an इज इक्वल टू A1 टाइम्स r इंटू n पावर -1। अच्छा, फिर इसके ऊपर मुझे मारूफ ने वहां से बताया कि सर मुझे टीचर ने कोई फार्मूला लिखवाया जिसके ऊपर सारे सीक्वेंसेस हो रहे थे। तो बेटा वो फार्मूला कौन सा, आपने कौन सा, मुझे पिक्चर नहीं भेजी अभी तक। मारो। सर मैं एक सेकंड मामा से फोन ला के आपको भेजती हूँ। हाँ जी, आप पिक्चर मुझे भेज दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैमरेज के अंदर बेटा ग्रेड लेने के लिए यू हैव टू गिव द मेथोडोलॉजी। आपको मेथोडोलॉजी एग्जामिनर को दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर आपको मिलेंगे। अच्छा, इस लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को 2 वर्कशीट्स भेजूंगा, आप लोग उसको ओपन करें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर कल जो है हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सीक्वेंस करेंगे, हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर पास पेपर क्वेश्चन करेंगे और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर। गुड यस जॉब। सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह।